آج پھر بیوی ہاتھوں میں لہنگا لیے کمرے میں آئی اور اسے دیکھنے سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت خوش ہو۔ لہنگا دیکھنے میں تو ایسا تھا کہ جیسے بہت مہنگا ہو اور وہ خوبصورت بھی بہت تھا۔ پھر میری بیوی مجھ سے فرمائش کرنے لگی۔ مجھے بہت عجیب لگتا مگر بیوی کی خوشی کی خاطر میں مان گیا۔ لہنگا پہنتے ہی مجھے اپنا سر بھاری لگنے لگا اور فوراً میں گہری نیند میں چلا گیا اور پھر صبح نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلتی تو کمرہ خالی ہوتا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر اوپر پنکھے پر پڑی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جب میں نے آس پاس دیکھا تو بیوی کو اپنے ساتھ موجود نہ پا کر آواز لگائی تو میری بیوی آواز سنتے ہی باتھ روم سے باہر نکلی۔ مجھے شک ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے پوچھا بھی کیا ہے لیکن وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے بھی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور خاموش ہو گیا اور اسے کہنے لگا میرا سر درد کر رہا ہے، پلیز مجھے چائے بنا دو۔ تو وہ ویسے ہی گیلے بال لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر میں اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ جو بھی تھا آفس سے چھٹی تو نہیں ہو سکتی تھی اور آئے روز سر درد کی وجہ سے چھٹی کرتا تو باس میری چھٹی کر دیتے، جو کہ ابھی میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں کال لگا رہا تھا کہ بیوی ناشتہ لے آئی اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے دوائی کھا کر میں آفس چلا گیا۔ میں نے راستے میں بہت سوچا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں کہ آخر کیوں میرا سر روز اتنا درد کرتا ہے۔ پھر میں کام کی ٹینشن میں بھول جاتا، آفس میں سارا دن کام پر لگا رہتا اور پھر جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو سامنے میری بیوی میری ماں سے لڑ رہی ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت چڑ چڑھتی تھی کہ آخر انسان سکون کیوں نہیں دے سکتا کسی کو۔ اور پھر غصے میں میری بیوی لا کر کھانا میرے سامنے رکھتی اور کمرے میں چلی جاتی۔ میری ماں میرے پاس بیٹھ کر اپنے دل بھر کی باتیں بتانے لگتی اور روز ایسے ہی ہوتا تھا۔ ماں مجھے باتیں بتاتی بلکہ بتاتی نہیں سناتی۔ ان کی ہر بات میری بیوی سے شروع ہو کر میری بیوی پر ختم ہو جاتی کہ بہو نے آج ایسا کیا، بہو نے آج ویسا کیا۔ میں سن کر تھک گیا اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا اور کھانے سے بھرپور پیٹ بھر کر میں فوراً اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اب وہاں کمرے میں گیا تو پھر میری بیوی شروع ہو گئی کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، لیکن میں نے اس کی باتوں کو اگنور کر دیا اور چینج کر کے آفس کا کام کرنے لگا۔ جیسے ہی میرے آفس کا کام ختم ہوا تب تک میری بیوی کا مون بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی اور مجھے پکڑا کر چلی گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ خیر چائے پی کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری تھکان اتر گئی ہو اور میں اپنی بیوی کو اس چائے کا تو دیوانہ تھا۔ ہو نہ ہو باقی کاموں کا پتہ نہیں مگر چائے کمال کی بناتی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہی میں سوچنے لگا کہ کون ٹھیک ہو سکتا ہے دونوں میں سے، ماں یا بیوی۔ ماں بھلا کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس نے تو مجھے پال پوس کر بڑا کیا، وہ کیوں ایسا چاہے گی کہ میں اپنی بیوی پر غصہ کروں یا میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت آئے؟ اور دوسری طرف بیوی ہے، میرے بغیر رہ نہیں سکتی، اتنا پیار کرتی ہے مجھ سے، میرا خیال رکھتی ہے۔ اس وقت میں کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ روز کا معاملہ بن گیا۔ لڑائی جھگڑا اس لیے میں خاموش ہی رہتا۔ چائے کے ہر بھرتے گھونٹ پر میری سوچ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میری چائے ختم ہوئی تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی اور روز کے مطابق آج اس کے ہاتھ میں کوئی لہنگا نہیں تھا بلکہ آج ایک بھاری بھرکم جوڑا لیے اندر آئی اور آ کر کہنے لگی آج آپ یہ پہنیں گے۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا مگر کہتی کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو یہ پہننا پڑے گا۔ میں اس سے کہتا کہ آخر میں کیوں پہنوں، یہ میرا پہناوا تو نہیں ہے۔ پھر آگے سے وہ بڑی محبت سے کہنے لگی کہ میں بھی تو سارا دن پہنتی ہوں، آپ کو تو صرف رات میں پہننے کو کہا ہے، میں تو دن میں پہن کر کام وغیرہ بھی کرتی ہوں لیکن آپ نے تو بس سونا ہی ہے۔ اور بیوی کی محبت کے آگے کس کا زور بھلا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے جوڑا لے کر باتھ روم میں بدلنے کے لیے چلا گیا۔ چینج کر کے جب میں واپس آیا تو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری کہ مجھے نیند آنے لگی مگر میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا اور آ کر لیٹ گیا۔ لیٹتے کے ساتھ ہی پھر گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بیوی کو اٹھاتا ہوں، چائے بنا دے گی مگر وہ روزانہ مجھ سے پہلے جاگ جاتی پر آج بھی وہ باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ میں نے آواز لگائی تو کچھ ہی دیر میں باہر آ گئی۔ باہر آئی تو اسے کہنے لگا کہ چائے بنا دو، سر میں بہت درد ہے اور وہ میری چائے بنانے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں تیار ہونے لگا اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ آفس میں نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ خواہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے یا ہنس رہے تھے۔ یہ بات میں سمجھ نہ سکا لیکن پھر بھی میں انہیں دیکھ کر
मुस्कुरा देता, क्योंकि वह खुश मिजाज का मामला था। ऐसे ही सारा दिन ऑफिस में गुजरा और जब रात को घर आया तो फिर वही नोक झोंक। ऐसे ही बस दिन गुजरते जा रहे थे और उस गुजरते दिनों के साथ मेरा ख्याल भी बदल गया। मुझे लगता था कि मेरी माँ ही कोई चालबाजी दिखाती है, वरना मेरी बीवी तो बहुत मासूम थी। कुछ दिनों के बाद मेरा भाई दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गया। अब ये घर यानी फ्लैट बहुत छोटा था इतने लोगों के लिए, इसलिए मैं एक छोटा मगर खूबसूरत घर ढूंढने लगा। ऐसा ना था कि फ्लैट खूबसूरत ना था, ये बहुत खूबसूरत था। इसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा लॉन्च था। लॉन्च के साथ ही ओपन किचन था। एक कमरे में हम रहते थे और एक कमरे में माँ रहती थी। ये फ्लैट मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से मिला था, जो ऑलरेडी डेकोरेट था और बहुत कमाल लगता था देखने में। लेकिन ये घर अब छोटा था। माँ और छोटा भाई एक कमरे में सोते थे। मुझे लगता था कि दोनों को अलग अलग कमरा मिलना चाहिए। आखिर मैं इतना कमाता हूँ कि उनके लिए ये सब कर सकूँ, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकूँ। अब मेरा छोटा भाई अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। शुरू में तो बहुत तैयार होकर जाता नौकरी ढूंढने, मगर 1 साल गुजर गया लेकिन उसको कहीं से कोई नौकरी ना मिल सकी। फिर मैंने खुद ही उसे मना कर दिया कि कुछ साल रुक कर दोबारा कोशिश करना, शायद मिल जाए। पहले तो वह इनकार कर देता और फिर एक दिन ना जाने कैसे मान गया। कहने लगा, भाई अब मैं कुछ दिन घर पर रहूँगा सुकून से, बहुत ज़रूरत है इसकी मुझे। मैं इसकी बात का मतलब तो ना समझ सका, मगर मैं नज़रअंदाज करके काम पर चला गया। जब वापस आया तो मेरी बीवी रो रही थी। उसे रोता देखकर मेरी जान निकल गई कि आखिर हुआ क्या है। क्या माँ ने कुछ कहा होगा या भाई ने? नहीं तो भाई तो मासूम है, माँ ने ही कुछ कहा होगा। फिर मैं इससे पूछता रहा कि बताओ क्या हुआ, लेकिन वह खामोश रही। इसकी खामोशी मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैं फ़ौरन गुस्से में उठकर माँ के कमरे में चला गया और उनसे पूछने लगा कि बताएं आपने मेरी बीवी को क्या कहा है, वे क्यों रो रही है। फिर मेरा भाई बोलने लगा, आप भाभी से जाकर पूछो उन्होंने क्या करा है। आज मैं बोलने लगा कि मैंने माँ से पूछा है, तुमसे नहीं। फिर माँ कहने लगी कि बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों रो रही है। तुम्हें ये तो पता है कि कितनी ड्रामेबाज है। चंद दिन रुक जाओ फिर देखना अपने लिए अलग घर भी मांगने लगेगी। मैं तो कहती हूँ तुम इसे अभी तलाक दे दो, वे तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और ना ही वे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कर रही है। माँ के मुँह से तलाक का शब्द सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया और मैं कहने लगा कि इसे तलाक देकर भेजने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को वापस भेज दूँ। कब तक मेरी कमाई पर बैठी रहेंगी। और मैंने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो मुफ्त रोटियां तोड़ने यहाँ आया है, कब से बैठा है, अभी तक जॉब क्यों नहीं मिली? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसने जॉब ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। और फिर ये सब मैं बोलकर कमरे में वापस आ गया। मुझे नहीं पता पीछे मेरी माँ पर क्या गुजरी होगी, लेकिन जब मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी गुस्से में खड़ी थी। मुझे लगा उसने माँ की तलाक वाली बात सुन ली है, मगर नहीं, ऐसा ना था। वे तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारी माँ है, वे जो मर्जी कहें, तुम्हें उनको ताना देने का कोई हक नहीं। सारी ज़िंदगी उन्होंने खिलाया पिलाया है, कभी ताना नहीं दिया। तुम लोगों को माँ के साथ कैसा रवैया रख रहे हो, जाओ जाकर माफ़ी मांगो उन्हें। कितना दुख हुआ होगा। बीवी की बातें सुनकर मुझे वाकई अफसोस हुआ कि मैं गुस्से में ज़्यादा बोल आया था माँ और भाई को। इसलिए मैं वापस गया माँ के पास, मगर अभी कमरे से बाहर ही था और माँ और भाई की आवाज़ आने लगी कि बीवी ने ही कोई पट्टी पढ़ा कर भेजी होगी, ना जाने क्या घोल कर पिलाती है। ये सुनकर मुझे अब तो और गुस्सा आने लगा कि मेरी बीवी कितनी रहमदिल है और मेरी माँ। मैं फिर गुस्से से वापस कमरे में चला गया और फिर मेरी बीवी मेरे लिए चाय बना कर लाई, जिसे पीकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ, मगर सोच अब भी मेरे दिमाग में चल रही थी। इतने में ही मेरी बीवी कमरे में आई, एक लहंगा उठाकर कहने लगी कि आज आप ये पहनेंगे। और मैं हंसने लगा कि सारी ज़िंदगी मैंने रात को लहंगा ही पहन कर सोना है क्या? तो बीवी कहने लगी, बस कुछ दिन, आइंदा ऐसी फरमाइश करूँगी नहीं। सुबह फिर सर दर्द कर रहा था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि जो भी हो जाए आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और बीवी को चाय बनाने का कहने लगा। वह नहाकर फ़ौरन चाय बनाने चली गई। आज उसके चाय बनाने का भी वक्त निकल चुका था तो मैं बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अभी मैं जा ही रहा था, मुझे अपनी बीवी की चीख सुनाई दी और मैं फ़ौरन बाहर भागा। बाहर गया तो मैंने देखा मेरी बीवी रो रही थी और पास मेरा भाई खड़ा था और पीछे मेरी माँ। और मुझे देखते ही मेरी बीवी मेरे पास आकर रोने लगी और कहने लगी ये मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। और पीछे से मेरा भाई बहुत बोल रहा था कि भाभी आप क्या कह रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बीवी की ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि एक लम्हे की देर किए बगैर भाई
भाई के पास जा पहुंचा और उसे मारना शुरू कर दिया। वे रो रहा था, चीख रहा था, माफ़ी मांग रहा था, मगर अभी सब की कोई ज़रूरत ना थी। मेरी माँ आकर मेरे पैरों में बैठ गई कि माफ़ कर दो मेरे बेटे को, लेकिन माफ़ी की कोई ज़रूरत थी ही नहीं और बगैर सोचे समझे मैंने फ़ौरन उन दोनों को घर से निकाल दिया। अभी मेरी बीवी पीछे रो रही थी और कह रही थी कि आपने माँ को क्यों निकाला, उनका तो कोई कसूर नहीं था, वह बेचारी कहाँ जाएंगी। मगर मैं उस वक्त बिल्कुल सोचने समझने की हालत में ना था। पहले ही मेरा सर दर्द कर रहा था और फिर अब ये ड्रामा शुरू हो गया। इसलिए आज मैंने हर ड्रामे से मुक्ति पा ली। ना ही रात को बहस, ना कोई झगड़ा होगा और ना ही दिन में कोई गलत नज़र किसी पर डालेगा। अब मैं अंदर आकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा और लगातार यही सोच रहा था कि बेचारी के साथ कितना गलत किया, मगर वे फिर भी माँ के हक में बोल रही थी। और फिर बगैर नाश्ता किए मैं घर से चला गया। रात को वापस आते वक्त मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, मगर इतनी टेंशन थी पहले ही। उसने तो यही कहना था कि टेंशन कम ले, इसलिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर घर आ गया। घर आया तो आज अजीब सा सन्नाटा था घर में। फ़ौरन अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी खामोश बैठी मुझे देख रही थी और कहने लगी कि माँ को वापस नहीं लाए। इसकी बात सुनकर मेरे हालात बिगड़ गए कि ऊपर वाले का खौफ कर, वे औरत तुम्हारा घर बर्बाद करना चाह रही है और तुम क्या कर रही हो। लेकिन मैं खामोश रहा और फिर वे खाना लाई और मैंने खामोशी से बैठकर खाना खाया और फिर चाय पीने लगा। चाय पीकर कपड़े बदल कर मैं फिर गहरी नींद सो गया। सुबह फिर सर में दर्द था, लेकिन आज मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया और ऑफिस चला गया। ऑफिस गया तो वहाँ सब मुझे देख ऐसे रहे थे जैसे मुझ पर हंस रहे हों। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगे बस भाई वैसे ही। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, मगर आज जल्दी काम ख़त्म करके डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ उसे अपनी सारी बात बताई कि ऐसे मेरे सर में दर्द होता है। अपने सीटी स्कैन करवाया और 1-2 टेस्ट लिख कर मुझे दे दिए जो सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले करवाने थे और फिर वहाँ से उठ गया। वापसी के रास्ते पर मैं बस यही सोच रहा था कि बीवी को नहीं बताऊँगा, वे बेचारी परेशान हो जाएगी। सुबह बाकी टेस्ट करवा कर ऑफिस चला गया क्योंकि इसकी रिपोर्ट रात तक ही मिलनी थी। ऑफिस गया तो आज कल वाले दिन से भी बुरा हाल था। मेरे बॉस ने मुझे बुलाकर कहा कि आज तुम जॉब से निकाले जाते हो, हम ऐसे लोगों को जॉब पर नहीं रखते। मुझे बहुत हैरत हुई कि कैसे लोगों को, और मैंने क्या करा है जो मुझे निकाल देंगे। जॉब के चले जाने का बहुत बड़ा दुख था और वो भी फ्लैट 1 महीने के अंदर खाली करना था। ऑफिस से निकाला तो डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ गया तो अपनी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के कैबिन में गया और फिर जो बातें डॉक्टर ने मुझे बताई उसे सुनकर मुझे अफसोस होने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ से उठ गया। वापसी के रास्ते पर मुझे बहुत सोचें आ रही थी। बीवी और माँ के हर वक्त लफ्ज़ याद आए थे। घर पहुँचकर मैंने खाना खाया और फिर जब बीवी चाय लाई तो मैंने पकड़ ली, मगर मैंने चाय ना पी। इसके जाते हुए चाय मैंने बाथरूम में फेंक कर पानी खोल दिया और फिर उसके आने से पहले ही मैं वापस आ गया। और जब वह वापस आई तो ऐसे जाहिर किया कि मैंने चाय पी ली है और जैसे बहुत सुकून मिला है उसे पीने के बाद। और फिर उसका लाया हुआ लहंगा दूसरे लहंगे से बदल के पहन लिया और गहरी नींद सोने की एक्टिंग करने लगा। मेरा दिल फटने लगा जब मेरी बीवी ने मुझे, मेरा नाम अमन है और मैं एक नॉर्मल घराने से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई के लिए बाबा ने दूसरे शहर भेज दिया। वहाँ से डिग्री लेकर मैंने वहीं जॉब शुरू कर दी। साल में 2 या 3 बार मैं अपने घर जाता बाबा माँ से मिलने। जॉब के दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। ये प्यार एक तरफा भी ना था, इसलिए हमने शादी करने का सोचा। इसके घर वाले तो पहले से ही माने हुए थे। असल मसला मेरा था, मैं अपने बाबा को कैसे मनाता, इसलिए मैंने बाबा और माँ को बताए बगैर शादी कर ली। ये बात करने में वापस अपने घर गया, मगर जैसे ही मैंने अपने बाबा को बताया कि मैंने दूसरे शहर में शादी कर चुका हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैं भूल गया था कि बाबा को दिल का मसला है और इसी वक्त बाबा को मेजर अटैक आया और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। बाबा के जार की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई, इसलिए मैं माँ और अपने भाई को अपने साथ ही अपने घर ले आया। वहाँ माँ ने पहली बार मेरी बीवी को देखा और उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर मैंने अपने भाई को दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अब घर में मेरी माँ, मेरी बीवी और मैं होते थे। वक्त गुजरने लगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ और मेरी बीवी में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। मेरी माँ को हर वक्त यही शिकवा रहता कि मेरी बीवी घर के काम नहीं करती, हमारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हारे जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है, खाना भी मैं बनाती हूँ, कभी कभी बस वह बनाती है।
इससे कहो घर के किसी काम में तो हिस्सा ले। मगर मैं माँ पर गुस्सा करता। आप गलत कह रही हैं, वैसे ही बगैर बताए मुझे कहीं नहीं जाती। आप हमारे बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर रही हैं। इस तरह मैं हमेशा अपनी माँ को झूठा करार देता, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती थी। और मेरी बीवी रोज़ रात को मुझे भारी लहंगा पहनने के लिए देती और कहती अपनी मोहब्बत का सबूत दो। फिर मैं इसका दिया हुआ लहंगा पहन लेता। लहंगा पहनते ही मेरा दिमाग सुन्न होने लगता और मैं थोड़ी देर में सो जाता। फिर सुबह आँख खुलते ही तो मेरा सर भारी होता, लेकिन बीवी मेरे पास मौजूद न होती। मैं उसे आवाज़ लगाता तो वह बाथरूम से नहा कर निकलती, लेकिन रोज़ उसके हाथ में इसका फ़ोन होता था जो हमेशा वह मुझसे छुपाती थी। मगर मैंने एक दिन देख लिया उसके हाथ में, बल्कि एक दिन तो रात के न जाने किस पहर मेरी आँख खुली तो बाथरूम से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने भारी होते सर के साथ उठकर दरवाज़ा बजाया, मगर वो कहने लगी कि तबीयत कुछ ठीक नहीं, थोड़ी देर तक बाहर आती हूँ। और फिर मैं दोबारा सो गया। अगले दिन मैंने इससे इस बारे में कोई बात नहीं की और ऐसे ही हमारे दिन गुजरते जा रहे थे। रोज़ लड़ाई झगड़ा, लेकिन मेरी बीवी हमेशा मेरी माँ का साथ ही देती। मगर मेरी माँ इसे घर से टिकने नहीं दे रही थी। और फिर जब मेरा भाई आया तो उसने भी मेरी बीवी के साथ गलत करने की कोशिश की और फिर मेरे माँ और भाई को घर से निकाल दिया। चंद दिनों बाद ऑफिस जाता तो सब मुझ पर हंसते, लेकिन मैं इग्नोर करता। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया और फिर मुझे एक वीडियो दिखाई गई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बीवी पर अफसोस होने लगा कि फिर वापसी पर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताने लगे कि आपको लगातार नींद की गोलियां दी गई हैं और इसके अलावा आपको रोज़ कोई ऐसी गोलियां दी जा रही हैं जिससे आपकी दिमागी हालत कमज़ोर हो जाए। और रोज़ नींद की गोलियां खाने की वजह से आपके पेट में भी बहुत इन्फेक्शन हो गया है। अगर एक गोली खाते तो बात और थी, आपको दी जाने वाली गोलियों की तादाद भी ज़्यादा ही होती होगी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझे सीधा सीधा अपनी बीवी पर शक गया, क्योंकि रोज़ रात को वही मुझे चाय देती और वह लहंगा। सब कुछ मेरे दिमाग में चलने लगा और डॉक्टर की बात, दिमाग का कमज़ोर होना, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। कितना बड़ा खेल कोई कैसे खेल सकता है, मगर मुझे अभी भी पूरा यकीन न था। इसलिए मैंने रात को मिलने वाली चाय नहीं पी और लहंगा भी बदल दिया और सोने की एक्टिंग करने लगा। फिर मेरे होश उड़ गए देखकर कि मेरी बीवी मुझे मेकअप करती और फिर मेरे साथ वीडियो बनाती और फिर कितनी देर वीडियो बनाकर मेरे चेहरे से मेकअप साफ़ करती और बाथरूम में चली गई और फिर उसके रोने की आवाज़ आने लगी। मेरी समझ से बाहर था कि वे सब क्यों कर रही है। फिर अगले दिन सुबह मैंने उससे पूछ लिया कि तुम ये सब क्यों करती हो। वह कहने लगी कि क्या। मैंने जवाब दिया कि वही जो तुमने रात को किया। मैंने रात ढोंग रचाया था सोने का और मैं तुम्हारी एक एक हरकत नोट कर रहा था। मेरी बात सुनते ही मेरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया और वे मेरे पाँव पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं कहने लगा कि बस मुझे हकीकत बताओ क्या है और क्यों कर रही हो ये सब। तो कहने लगी कि मैं छोटी थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया, मेरे बाबा मेरे लिए सौतेली माँ ले आए। अगर वे मुझसे प्यार करती थी, मगर लोग जब मुझसे सगी माँ का ना होने पर हमदर्दी करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं हर जगह अपने स्कूल दोस्तों सबको अपनी सौतेली माँ के बारे में गलत बातें बताती और वे सब मुझसे हमदर्दी करते। स्कूल में जब टेस्ट होते तो मैं रोने लगती क्योंकि मुझे याद नहीं होता था, इसलिए टीचर से झूठ कहने लगती और टीचर मुझे छोड़ देती और बहुत प्यार से पेश आती। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता। जब बड़ी हुई तो मेरी शादी तुमसे कर दी गई। तुम एक बहुत अच्छे इंसान थे, तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे वे सिंपैथी नहीं मिलती थी, वे तवज्जो हमदर्दी नहीं मिलती थी जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरी दो दोस्तें थी, उनमें से एक का पति दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट रखता था तो सब उसके साथ हमदर्दी करते और एक और दोस्त थी जो कि पेट से थी मगर उसका पति मर चुका था। लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ भी थी, लेकिन मुझे देखने की जलन होती और उन सब की हमदर्दियाँ मैं अपनी तरफ लेना चाहती थी। मगर यहाँ माजरा ही कुछ और था, इसलिए मैं रोज़ रात को तुम्हें कहती कि हम एक गेम खेलेंगे जिसमें तुम लड़की और मैं लड़का बनूंगी और फिर चाय में नींद की गोलियाँ देती और एक लहंगा पहनने के लिए देती जिस पर मैं बेहोश होने वाली दवाइयाँ लगा देती थी ताकि तुम होश में ना आ सको और मैं आराम से अपना काम कर लूँ। फिर वीडियो बनाती और उन्हें भेजती कि देखो मेरा पति एक किन्नर है और मैं कैसे इसके साथ गुजर बसर कर रही हूँ। और तो और इसकी माँ भी मेरे साथ बुरा रवैया रखती है और इसका भाई वह भी मुझे गंदी नज़रों से देखता है। मेरा यहाँ रहना बुरा हाल कर रहा है, मगर मैं फिर भी यहाँ रहती हूँ। फिर वे लोग मुझे वीडियो कॉल करती और मैं बाथरूम में जाकर रो रो कर अपने झूठे दुख सुनाती और अपनी
अपनी आवाज़ को ऐसा कर लेती कि उनको लगे कि वाकई मुझ पर जुल्म हो रहा है। वे मुझसे सवालात पूछने लग जाते और मैं रो रो कर उन्हें जवाब देती और मेरी सब बातों से उन लोगों की तमाम हमदर्दी मेरी तरफ आ गई और मैं यही चाहती थी। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ को पता चल गया कि मैं ये सब कर रही हूँ और उसी रात उसने तुम्हें कहा भी कि मुझे तलाक दे दे। मगर मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए यकीन का पौधा बहुत ऊंचा कर चुकी थी। मैं रोज़ तुम्हारे जाने के बाद बाजार जाती और एक लहंगा लाती। दुकानदार को यह कहकर कि मैंने आगे चेक करवाना है, आधी कीमत रख कर दे दे। तो इस तरह मैं रोज़ इसके बदले हुए लहंगे लाती और फिर दवाइयाँ ख़रीदती, स्प्रे ख़रीदती और घर आ जाती। तुम्हारी माँ तो बेचारी बहुत मासूम थी। वे मुझे बहुत रोकती थी कि बेटा आज ना जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ वक्त वापस बैठ जाओ। मगर मुझे वे एक आँख न भाती थी और मैं किसी न किसी तरह उनका वजूद तुम्हारी नज़रों में गिरा कर खुद को ऊँचा दिखाना चाहती थी। मुझे तुमसे हमदर्दी हासिल करनी थी, जो मैं बहुत जल्दी हासिल कर गई। और तो और इस रोज़ तुम्हारे भाई ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरे बस इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया ताकि तुम उसे यहाँ से निकाल दो। अगर वे तुम्हें मेरी हकीकत बता देता तो मुझे तुम तलाक दे देते और फिर मैं बाद में उनकी अच्छाइयाँ करके तुम्हारी नज़र में अच्छी बन जाती। लेकिन न जाने कैसे तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई बहुत शरीफ और अच्छे इंसान हैं। तुम उन्हें वापस ले आओ, मैं उनसे भी अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी। मगर तुम प्लीज़ मुझसे नफ़रत वाला अंदाज़ मत करना। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बीवी के अल्फाज सुनकर मुझे अपनी माँ की ममता, उनकी मोहब्बत, भाई का रोना, मेरा उसे मारना सब कुछ याद आने लगा। इस लड़की ने मेरे घर वालों पर, मेरी माँ और मेरे भाई पर रहम नहीं खाया। मैं इस पर कैसे रहम कर देता। इसने तो मुझे बदनाम करके छोड़ दिया। फिर मैंने उसे बताया कि जो वीडियो तुम उन्हें बना कर भेजती थी, उन्हीं में से किसी ने मेरी वीडियो वायरल कर दी और इसीलिए मेरे ऑफिस वालों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। और जो दवाइयाँ तुम मुझे देती थी उनका बहुत गलत साइड इफ़ेक्ट हुआ है मेरे ऊपर। मगर तुम इन सब से क्या, तुम्हारे लिए तो अहम बस यही था कि तुम सिंपैथी गेन करती। इसलिए आज मैं तुम्हें वाकई लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए तलाक देता हूँ। और फिर मैंने खड़े खड़े उसे तलाक दे दी तो वो रो रही थी, लेकिन मुझे ज़रा यकीन नहीं था कि ये क्या आंसू सच्चे हैं या झूठे। इसलिए मैं उसे यहाँ से वापस जाने की हिदायत देता घर से बाहर निकल गया अपनी माँ और अपने भाई को ढूंढने। लेकिन वे मुझे कहीं ना मिले। अगर वे इधर होते तो मिलते ना। मैं समझ गया कि वे यकीनन वापस चले गए होंगे। इसलिए मैं वापस घर गया। जब घर गया तो मेरी बीवी वहाँ से जा चुकी थी। इसलिए मैं अपना सामान भी पैक करके अपने पुराने घर चला गया। वहाँ गया तो मेरी माँ, मेरे भाई वहीं मौजूद थे। उन दोनों को वहाँ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दोनों के साथ बहुत बुरा किया, मगर उन्होंने इस चीज़ का शिकवा तक न किया और मुझे गले से लगाया। माँ के गले लगते ही मैं बहुत रोया और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और उन्हें अपनी बीवी की सारी हकीकत बताई और उन्हें बताया कि वे मुझे किन्नर बनाकर सबकी हमदर्दियाँ बटोरती थी और फिर अपनी बीमारी का भी बताया। मेरी माँ मेरी कहानी सुनते सुनते रो रही थी और मेरा दुख, मेरी कहानी किसी सूरत ख़त्म होने को न थी। और फिर रोते रोते मुझे सवेरा हो गया। लेकिन अब मुझे कई बार शर्मिंदगी घेर लेती कि किस तरह मैं अपने भाई के पैसों पर आराम से बैठकर खा रहा हूँ और मेरा भाई मेरा इलाज भी करवा रहा है। काफ़ी हद तक मैं ठीक हो चुका था और मेरी बीवी की दोस्त ने उसे हमदर्दी करके अपने भाई से शादी करवा दी और अब वे लड़का इस पर बहुत जुल्म करता है क्योंकि वह भी इसकी हकीकत से बखूबी वाकिफ़ था। लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे इसी शहर में नौकरी मिल गई और मेरा भाई एक हैकर था। उसने मेरी वे वायरल वीडियो भी डिलीट करवा दी। इसके अलावा मेरी माँ ने अपनी मर्ज़ी की 2 बहुएं भी ढूंढ ली और हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगी। पहले जो हर वक्त टेंशन में रहता था, अब उन टेंशन से भी आज़ाद हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों को कितनी तकलीफ़ दे देता है और दूसरों की खुशियाँ देखकर जलता है, मगर यहाँ दूसरों को मिलने वाली हमदर्दियाँ देखकर भी लोग जलते थे। यह मुझे अपनी इस कहानी से पता चलता था। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं आइंदा से अपनी माँ के साथ कुछ